Good morning, students. In this video, we will discuss about the remaining determiners. In our last video, I have told you about the articles, possessives and demonstratives. In this video, and numerals also. In this video, we will discuss about the quantitative determiners. What are the quantitative determiners? About this, we will discuss in detail in this video. And for our last determiners, you will have to revise with the help of video number 1. Now, let's come to the point. Each and every, these are the determiners. It is also called distributive determiners. Yes, guys. Where we should use each and every, yes, listen very carefully, each is used for two persons, about that we are definite. Each का जो use किया जाता है, there is only a difference between each and every. What is the difference? Look, each is used for two persons. Each का जो use किया जाता है वो two persons के लिए किया जाता है. And definite means जिनके बारे में आप definite हैं, जिसके बारे में आपको पता है. While every is used for more than two persons. और जो every का यूज़ किया जाता है जब हम more than two persons के बारे में बात करते हैं तो हम every का यूज़ करेंगे. It is very clear. Each is used for two persons about whom we are definite, while every is used for more than two. Clear? For example, it will also be clear to in detail. Every boy in this world or in this class, in this school, अगर स्कूल में हम सभी boys के बारे में बात करें, then we will say every boy, not each boy, because we are talking about all the boys. हम सभी boys के बारे में बात कर रहे हैं. Then we should use every. Every boy must have his own book. If your teacher is teaching in the class and he is saying that every boy, ये हर एक लड़के को means all boys, not about two or less than two, means every boy must have his own book. यहाँ पे सभी boys के बारे में बात की जा रही है कि सभी के पास book होनी चाहिए. Then we use every. Every member of the party was garlanded. Every member means we are talking about all the member of the party. हम सभी members की बात कर रहे हैं, means more than two से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. Then we should use every. Was garlanded मतलब सभी को माला पहनाई गई, सभी को garland पहनाई गई. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे every because we are talking about more than two members, means वो कितने भी हो सकते हैं more than two. तो यहाँ पर हमने every का यूज़ किया है. There were only two poets. वहाँ पर only two poets थे. देखो यहाँ पर अब हम each का यूज़ कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है. Each poet recited his poem. हर poet ने recite किया, सुनाई, अपनी poem सुनाई. Now we are talking about the two poets that दो poet थे और दोनों ने अपनी बनाई, मतलब दोनों ने अलग अलग, प्रत्येक ने अपनी poem सुनाई. She come to me every day. वो हर रोज़ मेरे पास आते हैं. हमेशा की बात की जा रही है, रोज़ की बात की जा रही है. Then this is the difference between each and every. Each is used for two persons and every is used more than two. Okay. Next determiner is no, any and some. These are called quantitative determiners because they tell us about the quantity. क्वांटिटी के बारे में हमें ये डिटर्मिनर्स बताते हैं. नो, एनी एंड सम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट नो एंड एनी. यस गाइस, लिसन केयरफुली. नो एंड एनी डिटर्मिनर्स जो होते हैं दैट आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जब हम बात नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की करते हैं तो वहाँ पर नो और एनी का यूज़ करते हैं. नो का भी यूज़ होता है और एनी का भी यूज़ होता है. नो जैसा कि आपको पता ही है, नो मीन्स नो नहीं, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंस में ही आता है. तो एनी का यूज़ भी हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं और इंटेरोगेटिव में भी करते हैं. बट जब बात सम की आती है, सम इज़ ऑल्सो अ क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनर बट इट इज़ जनरली यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज. लेकिन सम का जो हम यूज़ करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में करते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड एनी एंड सम. नाउ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल इट विल बी क्लियर टू यू. देयर इज नो हाई स्कूल इन दिस विलेज. देखो यहाँ पर बोला जा रहा है नो हाई स्कूल, यहाँ पर कोई भी हाई स्कूल नहीं है इस विलेज में. नाउ इन नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ किया जा रहा है, सो वी यूज़ नो. तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, नो का. देयर इज़ नो ट्रूथ इन व्हाट यू से. कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई सच नहीं है. व्हाट यू से, जो तुम कहते हो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो हमने किसका यूज़ करेंगे, नो का. देयर इज़ नॉट एनी.
देयर इज नॉट एनी शुगर इन दिस पॉट, इस पॉट में कोई भी शुगर नहीं है, कोई शुगर नहीं है इस पॉट में, तो हमने यहाँ पर एनी का यूज़ किया है। तो देखो आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस में किया है। ही डिड नॉट बाय एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कोई, एनी मीन्स कोई होता है, कोई नहीं, कुछ नहीं खरीदा उसने फ्रॉम द मार्केट। देर इज़ नॉट एनी पर्सन, देर इज़ नॉट एनी बॉय इन दिस क्लास, अगर हम पर्सनस की बात करें तो भी हम नो एनी का यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ नॉट एनी बॉय इन दिस क्लास, इस क्लास में कोई भी बॉय नहीं है, नेगेटिव की बात की जा रही है। ओके, सम इज़ यूज इन अफर्मेटिव, और सम का यूज़ हम किस में करते हैं, अफर्मेटिव में, और एनी इज़ यूज इन नेगेटिव, ये हम आपको बता ही चुके हैं। ईच ऑफ देम कैन हाउएवर बी यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इन सभी का हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। वी नेवर यूज सम इन नेगेटिव, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि सम का यूज़ जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है, तो इसका यूज़ हम नेगेटिव में नहीं करते हैं। प्लीज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे कर रहे हैं इसका, प्लीज़ लैंड मी सम मनी, लैंड मीन्स होता है उधार लेना, देना, प्लीज़ लैंड मी उधार, मुझे उधार दो, सम मनी कुछ पैसा, तो हम यहाँ पर इसको अफर्मेटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं। सम गर्ल्स आर स्टिल वर्किंग, स्टिल राइटिंग, कुछ गर्ल्स अभी भी वर्क कर रही हैं, लिख रही हैं, स्टिल राइटिंग अभी भी लिख रही हैं, तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंस में इसका यूज़ कर रहे हैं। गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ मिल्क दो। तो इससे आपको क्लियर हुआ कि जो सम का यूज़ है वो हम किस में कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब जब क्वेश्चन, मैंने आपको बताया, अभी पीछे बताया कि जो हम इसका जो यूज़ है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन, जब हम कोई इंटरोगेट करेंगे, कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, अगर हम उसमें कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई इन्विटेशन दे रहे हैं, तब हम सम का यूज़ करते हैं। हाउ, लुक, विल यू हैव सम मिल्क, विल यू हैव सम मिल्क, क्या आपके पास कुछ मिल्क है, यू आर रिक्वेस्टिंग बिकॉज यू वांट सम मिल्क, देन यू आर आस्किंग विल यू हैव सम मिल्क, क्या आपके पास कुछ मिल्क है, इट मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करके उससे पूछ रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं क्या कुछ मिल्क है। विल यू शो मी योर पेन्स, क्या आप मुझे अपने पेन्स दिखाएंगे, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं सम का। अब देखो सम का इन रेयर केसेस में क्या होता है, हम कभी कभी हम सम का जो है यूज़ तो हम उसका कर रहे हैं अफर्मेटिव, लेकिन नेगेटिव में उसका सेंस जो है, जब हम कभी सम का जो यूज़ है वो हम नेगेटिव में कैसे करते हैं, जब जो स्पीकर है, जो उस बात को कह रहा है, बात बोलने वाला है, अब वो सम का यूज़ करके जब एक्सपेक्ट कर रहा है अफर्मेटिव आंसर, मीन्स वो जो सेंटेंस है वो तो नेगेटिव है, बट उसमें जो स्पीकर जो नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहा है, जो बोल रहा है, तो वो आंसर जो एक्सपेक्ट कर रहा है सामने वाले से, वो एक्सपेक्ट कर रहा है अफर्मेटिव सेंस में। वो कैसे, देखो, डिड नॉट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, क्या मैंने तुम्हें कल कुछ पैसा नहीं दिया था, इट मीन्स कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है ये पैसा दिया था, वो उसको इंटरोगेट कर रहा है, उसको पूछ रहा है। तो यहाँ पर उसने नेगेटिव सेंटेंस, भले ही नेगेटिव में क्वेश्चन किया है, बट वो जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है वो अफर्मेटिव ही, पॉजिटिव ही कर रहा है। इन दैट केसेस वी कैन यूज सम इन इंटरोगेटिव, सॉरी, इन नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ। वुड नॉट यू गिव मी सम मोर बुक्स, क्या आप मुझे कुछ किताबें और नहीं, तो क्या और किताबें, सम मोर बुक्स, कुछ और किताबें आप मुझे नहीं दोगे। इट मीन्स कि आप जब उससे क्वेश्चन कर रहे हो तो देन द स्पीकर, जो स्पीकर है वही क्वेश्चन कर रहा है, स्पीकर बोलने वाला होता है, वही क्वेश्चन कर रहा है, तो वो आंसर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो अफर्मेटिव सेंस में कर रहा है। सो इन दिस केस वी कैन यूज सम व्हेन द स्पीकर इज आस्किंग एनी क्वेश्चन इन नेगेटिव बट ही एक्सपेक्ट द आंसर इन अफर्मेटिव। इन दिस केस वी यूज सम in the sentences just like I have cleared to you with the help of example. Okay, now एक और बात आपको बताते हैं, जो any है, any countable and uncountable दोनों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। We can use any with countable और uncountable both. नाउन बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल हो, वो चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल अनकाउंटेबल। आपको पता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स जो भी हैं, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं। और चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशंस में हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, आइए हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्लियर करते हैं इस बात को, अपने डाउट को। आई हैव नॉट एनी स्पेयर पेन, मेरे पास कोई भी पेन नहीं है। देखो जो पेन है हमने उसके लिए यूज़ किया है, मेरे पास कोई भी अलग पेन नहीं है, स्पेयर पेन नहीं है। पेन इज़ काउंटेबल, आप पेन का यूज़ कर रहे हो। शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई, अब जो रिप्लाई है वो अनकाउंटेबल है, तो हमने दोनों कंडीशंस में इसका यूज़ किया। इज़ देयर एनी यूज़, इंटरोगेटिव में भी हम यूज़ करते हैं, आपको हम पीछे बता चुके हैं। इज़ देयर एनी न्यूज़, क्या कोई खबर है, तो न्यूज़ यहाँ पर हमने किया, क्या कोई खबर है। आगे चलते हैं। हैव यू एनी लेटर फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई लेटर है, तो लेटर को आप काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एनी का यूज़ किया है।
डिड नॉट यू लैंड मी एनी मनी। अब देखो लेटर को आप काउंट कर सकते हो पर मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स में आएगा मनी। तो यहाँ पर दोनों के लिए हमने क्या यूज़ किया है, एनी। लेटर काउंट कर सकते हैं बट मनी को नहीं कर सकते, इसलिए हमने दोनों के लिए यूज़ किया है एनी। एनी मीन्स होता है कोई। क्या यहाँ पे इंटेरोगेट किया है, हैव यू एनी लेटर, इससे आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। एक और यहाँ पर हम कुछ और हैं रूल्स जो आपको हम बताएंगे। देखो हार्डली, एक वर्ड होता है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली। यहाँ पर रेयरली, इस तरह के हार्डली मुश्किल से ही, स्केर्सली मुश्किल से ही, बहुत ही मुश्किल से, बेयरली भी इसी सेंस में यूज़ किया जाता है। इनका जो मीनिंग है दोनों नेगेटिव मीनिंग कैरी करते हैं। ये इनका दोनों मतलब मुश्किल से ही, यानी कि ना के बराबर, इक्वल टू नथिंग। देयर इज़ हार्डली एनी मिल्क इन द हाउस, देयर इज़ हार्डली एनी मिल्क। एनी का जो यूज़ है वो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली इनके बाद भी हम यूज़ करते हैं, जो कि नेगेटिव सेंस ही बनाता है, सेंटेंस में क्रिएट करता है। देयर इज़ हार्डली एनी मिल्क इन द हाउस, घर में मुश्किल से ही जो है दूध है। देखो अभी बताया था मैंने आपको कि एनी का यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। और यहाँ पर हार्डली का भी यूज़ हो रहा है, तो जब भी किसी सेंटेंस में हार्डली आता है तो आप उसमें एनी का यूज़ करेंगे। इट इज़ अ कंडीशन दैट हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली इनके बाद हम एनी का यूज़ करते हैं कि क्या घर, और हम नेगेटिव मीनिंग दे रहा है वो कि क्या कोई इस घर में मुश्किल से ही, बहुत ही मुश्किल से हार्डली कोई मिल्क होगा, मिल्क नहीं है, मीन्स कि नहीं है, तभी वो ऐसा बोल रहा है। देयर आर स्केर्सली एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, मुश्किल से ही इस गार्डन में कोई फ्लावर है, इट मीन्स वहाँ पर कोई फ्लावर नहीं है, इक्वल टू नथिंग, वन और टू, नॉट मैनी मोर। शी हैड बेयरली एनी एडमायर, उसके पास शायद ही कोई, मुश्किल से ही कोई एडमायर हो, उसकी तारीफ़ करने वाला शायद ही कोई हो। तो जब हम हार्डली, स्केर्सली, बेयरली की बात करते हैं तो हम उसके बाद जो है एनी का यूज़ करेंगे, और वो नेगेटिव सेंसेस सेंटेंसेस में क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ द अदर रूल, आफ्टर इफ़ के बाद वेयर देयर इज सम डाउट, अगर आप कोई भी डाउटफुल होते हैं, अगर मगर इस तरह का है, तो वहाँ पर भी हम एनी का यूज़ करते हैं। वहाँ पर कोई डाउट को शो करने के लिए, यहाँ पर कभी आप हैरान हो जाते हैं, कोई वंडर होता है, तो वहाँ पर भी एनी का यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग द सम कम टू मी, कि अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है इन सम्स को सॉल्व करने में, कम टू मी, मेरे पास आओ। इट मीन्स जो आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है, जो स्पीकर है, वो डाउटफुल है, उसको पता नहीं है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी है या नहीं है। तो इन दिस केस दैट आई हैव टोल्ड यू दैट इफ़ व्हेन देयर इज़ सम डाउट, जब कोई डाउट होता है तो उस कंडीशन में हम एनी का यूज़ करते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर, अगर इसमें कोई खतरा है, अगर वहाँ पर कोई खतरा है, ब्लो द विसल, तो जो है विसल बजाओ, यानी कि यहाँ पर भी आप डाउटफुल हैं, तो इन कंडीशन में हम एनी का यूज़ करते हैं। ओके, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वेयर नेगेशन इज इम्प्लाइड, जहाँ पर नेगेशन इम्प्लाइड हो जाती है वहाँ पर अफर्मेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। आई वर्क विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, यहाँ पर अफर्मेटिव है कि मैं बिना किसी मुश्किल के इस काम को कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आपके मन में नेगेशन है वो इम्प्लाइड हो चुकी है, तो इन केसेस में भी हम एनी का यूज़ करते हैं। विदाउट के बाद एनी, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बिना किसी मुश्किल के ही मैं इसको कर सकता हूँ। ट्राई टू प्रिवेंट स्टॉप, बात एक ही है, दोनों सिनोनिम्स हैं। एनी मिसयूज़ ऑफ वाटर, किसी भी तरीके का कोई भी मिसयूज़ है तो उसको रोको, उसको रोकने के लिए ट्राई करो। ट्राई मतलब कोशिश करो किसी वाटर के मिसयूज़ को रोकने की। एनी इज़ यूज कंडीशनल क्लॉजेज आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है गाइस, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम कंडीशनल क्लॉजेज में भी इफ़, जैसे आपको यहाँ पर भी बताया, इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हम एनी का यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, कम टू मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे पास आओ। कंसल्ट द डॉक्टर इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, अगर कोई भी परेशानी है, कोई, देखो मैंने बताया ना कि एनी का मीनिंग कोई होता है, तो अगर कोई भी परेशानी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इन दिस केसेस वी यूज़ एनी, यहाँ पर मैंने एनी के यूजेस के बारे में बताया कि हाउ वी कैन यूज़ एनी एज अ डिटरमिनर इन एनी सेंटेंस, एंड आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। ऑल, बोथ एंड हॉल, देयर आर 3 determiners, all, both and whole. Now we will discuss about these in detail. देखो all, both and whole, all means सब, जब हम सबके बारे में बात करते हैं, both को अगर हम हिंदी में बात करें both की, तो उसका मतलब भी होता है दोनों, जब हम दोनों किन्हीं दो के बारे में बात कर रहे हैं। and whole means whole, पूरा। अब उसको कैसे यूज़ करते हैं एज अ डिटर्मिनर इन एनी सेंटेंस, देन आगे समझते हैं। all denotes the total of many units together, ऑल का जो यूज़ किया जाता है, ऑल जो डिनोट करता है वो टोटल ऑफ मैनी, बहुत सारे जब यूनिट्स होते हैं, कोई भी हम यूनिट है किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, जब टुगेदर साथ साथ उनके बारे में बात कर रहे हैं, देन वी यूज़ ऑल। ऑल मीन्स सब,
भाई जब हम बोथ के बारे में बात करते हैं तो बोथ शोज द टोटल ऑफ 2 यूनिट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हम ऑल एंड बोथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोथ है वो दोनों। तो यहाँ पर जब 2 यूनिट्स की टोटल 2 यूनिट्स की बात की जाएगी तो हम बोथ का यूज़ करेंगे, और जब मैनी यूनिट्स को एक साथ काफ़ी सारे यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे तो ऑल का यूज़ करेंगे। एंड होल इज यूज, होल का जो यूज़ किया जाता है वो भी होल मतलब एंटायर होल सारा, तो ओनली विद द सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पर ऑल भी जो है वो टोटल यूज़ हो रहा है, होल का यूज़ जो है वो भी हम सबके सेंस में संपूर्ण अगर बात की जाए तो उसके लिए हम करते हैं। लेकिन जो होल का यूज़ है उसमें क्या डिफरेंस है कि होल का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर जो है उनके साथ यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर भी होना चाहिए और अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी हम होल का यूज़ करेंगे। और ऑल का जो हम यूज़ करेंगे वो जब हम सारी यूनिट्स के साथ बात कर रहे हैं तो हम उसमें प्लूरल सेंस में भी कर सकते हैं, काउंटेबल में भी कर सकते हैं। और बोथ का जो हम यूज़ करेंगे वो जब हम 2 यूनिट्स की एक साथ बात करेंगे तब हम बोथ का यूज़ करेंगे। और वो आगे हम कैसे यूज़ करें, आइए एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम उनको क्लियर करते हैं। ही गेव मी ऑल द मैंगोज, उसने मुझे सारे मैंगोज दे दिए। इट मीन्स जो ऑल मैंगोज है, मैनी मैंगोज है, जितने भी हम सबकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल का यूज़ हम जो है सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके लिए कर सकते हैं। ऑल द गर्ल्स, तो सभी जो गर्ल्स हैं आर प्रेजेंट टुडे, सभी गर्ल्स आज प्रेजेंट है। गर्ल्स को आप काउंट कर सकते हैं, मैंगोज को आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑल का यूज़ किया है जब हम सारे यूनिट्स की बात कर रहे हैं। प्लूरल नंबर भी है और काउंटेबल भी है। और आगे हम देखो बोथ के बारे में बात करते हैं। नाउ बोथ मीन्स 2, अबाउट 2, टोटल ऑफ 2 यूनिट्स। बोथ विजय एंड विनय आर एक्सलेंट इन पेंटिंग। देखो यहाँ पर 2 बॉयज़ की बात, यूनिट यहाँ पे बॉय है, 2 बॉयज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोनों बॉयज़, दोनों को हम साथ साथ बता रहे हैं। दोनों बॉयज़ के बारे में बात करें, आर एक्सलेंट इन पेंटिंग, कि दोनों जो हैं वो पेंटिंग में एक्सलेंट है, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। और यहाँ पर हमने सारी गर्ल्स की बात की है और मैंगोज़ की बात की है, तो वो ओवर मतलब टोटल है, सभी के बारे में बात की है। तो हमने किन्हीं 2 के बारे में बात नहीं किया, तो हमने यहाँ पे ऑल का यूज़ किया। और यहाँ पर 2 बॉयज़ के बारे में हमने 2 यूज़ किया है, 2 बॉयज़ के बारे में तो हमने बोथ का यूज़ किया है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ दी हस्बैंड एंड वाइफ आर इलेक्टेड टू द असेंबली, जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 यूनिट्स, वहाँ पे 2 हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आर इलेक्टेड टू द असेंबली, दोनों के दोनों जो है असेंबली के लिए इलेक्ट हो चुके हैं, उन्हें चुन लिया गया है। देन इन दिस केस वी विल यूज़ बोथ। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनी यूनिट्स और देन वी यूज़ ऑल। और यहाँ पर एक कंडीशन और भी है गाइस कि जो दा का यूज़ किया, जैसे ऑल दी गर्ल्स, ऑल दी मैंगोज, बोथ दी हस्बैंड एंड वाइफ, देखो नेम से पहले दा नहीं आता, ये मैं आपको आर्टिकल्स में बता चुकी हूँ। सो वी डिड नॉट यूज़ हेयर बिफोर नेम द, हमने दा नहीं यूज़ किया बिफोर इसके नेम से, किसी बॉय और प्रॉपर नाउन से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये हस्बैंड एंड वाइफ की बात आई है तो हमने दा का यूज़ किया है। तो जो दा का हम यूज़ कर रहे हैं ऑल एंड बोथ में, तो हम इसके बाद में करते हैं। ऑल के बाद आएगा, बोथ के बाद आएगा। जब बात हम करेंगे हॉल की तो हॉल से पहले दा का यूज़ होता है। देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल बोथ अमंग बिटवीन सॉरी देयर इज दिस इज द डिफरेंस अमंग ऑल बोथ एंड ऑल हॉल। देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ऑल के बाद द, ऑल द स्टूडेंट, बोथ द सिस्टर्स। जब बात हम हॉल की करेंगे तो द होल क्लास वॉज एब्सेंट, की पूरी क्लास जो थी वो एब्सेंट थी। यहाँ पर जो क्लास है वो अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है, सिंगुलर सेंस में यूज़ करेंगे, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ हम इसमें सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स में हम पूरे कलेक्शन को एक नाम दे दिया जाता है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं। इन योर लास्ट लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू दैट कलेक्टिव नाउन्स में हम जो है वो सिंगुलर का ही यूज़ करते हैं, वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। एज आई हैव यूज हेयर द होल क्लास वॉज एब्सेंट, कि जो पूरी की पूरी क्लास थी वो एब्सेंट थी। वो क्लास अनकाउंटेबल भी है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि होल का यूज़ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन्स में किया जाता है, तो वो इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है गाइस। द होल क्लास वॉज एब्सेंट, की पूरी क्लास एब्सेंट थी। और यहाँ पर जो क्लास है वो अनकाउंटेबल भी है और यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, सिंगुलर नाउन का यूज़ किया है। ओके, नाउ ऑल इज यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑल का जो यूज़ है आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक इन द लास्ट एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट, कि सारी की सारी गर्ल्स प्रेजेंट है, गर्ल्स को आप काउंट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर बात करें ऑल हर मिल्क वाज सोल्ड इन नो टाइम, उसका सारा का सारा मिल्क वाज सोल्ड बेचा गया इन नो टाइम, बिना किसी देरी के, बिना किसी समय के बिक गया। और यहाँ पर हम मिल्क के लिए ऑल का यूज़ किया, सारा मिल्क। यहाँ पर ऑल बाय बुक्स काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर हमने मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल के सामने कंडीशन में यूज़ किया, तो दोनों कंडीशन में हम बोथ का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं इधर एंड नीदर। इधर एंड नीदर आर द डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स।
इधर और निधर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, क्योंकि इधर जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है और निधर जो है वो उसका जस्ट अपोजिट है, वो नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। इधर का मतलब होता है वन ऑफ द टू पर्सन्स और थिंग। जब हम किन्हीं दो में से एक चॉइस करते हैं, या ये या वो, देन वी शुड यूज़ इधर। एंड व्हेन ना ये ना वो मीन्स नॉट एनी ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं, तब हम यूज़ करते हैं निधर का। तो इस तरह से देखो कैसे हम कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से और क्लियर हो जाएगा गाइस आपको। आई कैन स्पीक अदर साइड, मैं दोनों में से किसी भी साइड, मतलब एक लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट मैं रोड की किसी भी साइड चल सकता हूँ। तो देन इट्स योर चॉइस कि आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर कोई भी साइड यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट निदर, निदर ऑफ दैम कुड स्पीक ऑन द स्टेज। निदर ऑफ दैम मतलब वहाँ पर जो भी है उनमें से कोई भी नहीं कुड स्पीक ऑन द स्टेज, स्टेज पर बोल सका, मीन्स ना ये ना वो, दोनों में से कोई भी नहीं बोल सका। तो यहाँ पर दोनों, जब इसका ऑपोजिट सेंस में हमने यूज़ किया है तो यहाँ पर निदर का यूज़ किया, ना तो ये ना वो। एक और होता है गाइस, इसमें दिया नहीं हुआ है, आइदर और नाइदर नो। तो यहाँ पर जब हम दो सब्जेक्ट्स की बात करें, आइदर यू और योर ब्रदर कैन गो इनटू द पार्टी, आइदर यू और योर ब्रदर, either you or your brother can go to the party। देखो यहाँ पर हमने जैसे आपको दो चॉइस की बात की थी, तो यहाँ पर इधर निधर का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर इधर के साथ और का यूज़ होता है, निधर के साथ नोर का होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप ये समझिए, इधर यू और योर ब्रदर या तुम, यहाँ पर दो सब्जेक्ट आए हैं, योर ब्रदर और यू। तो जब दोनों में से हम किसी एक को चूज़ करेंगे, या तुम या तुम्हारा ब्रदर कैन गो टू द पार्टी, पार्टी में जा सकता है, यानी कि दोनों में से कोई एक। तो इन कंडीशंस में हम इधर का यूज़ करते हैं और के बाद सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है। और जब बात निधर की होगी, जब बात निधर की होगी तब हम क्या कहेंगे, निधर यू नॉर योर ब्रदर कैन गो टू द पार्टी, ना तुम ना तुम्हारा ब्रदर, मीन्स ऑपोजिट हो गया, ये पॉजिटिवली हो रहा है कि दोनों में से कोई एक कैन गो टू द पार्टी। एंड जब हम निधर की बात करेंगे तो नन ऑफ बोथ, मतलब दोनों में से कोई भी, ना तुम ना तुम्हारा भाई। इन दिस केस वी यूज निधर विद नॉर। हम यहाँ पर निधर के साथ नॉर का यूज़ करते हैं, इधर के साथ और का यूज़ करते हैं। गाइस एक और थोड़ा सा डाउट रहता है आप लोग के मन में कि इधर है या आइधर है, निधर है या नाइधर है, तो आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ मतलब कोई इसमें इतना डाउटफुल नहीं होना है आपने। ओके, नाउ आगे चलते हैं। आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ मैनी, मच, फ्यू, लेस एंड सेवरल। देखो ये भी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स ही होते हैं, मैनी, मच, फ्यू, लेस एंड सेवरल। पहले हम बात करेंगे मैनी एंड मच की। देखो मैनी मीन्स, और ये दोनों ही क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, लेकिन जो है ये जो मैनी होता है ये नंबर्स को डिनोट करता है, और जो मच होता है वो क्वांटिटी को, मीन्स जिन्हें आप, वही जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो मैनी जो है, मैनी का जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, उन पर्सन्स के साथ करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। और मच का वहाँ पर यूज़ करते हैं जिनकी आप क्वांटिटी बताते हैं बट आप उनको काउंट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आई हैव मैनी बुक्स, कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, इट मीन्स कि आप बुक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं कि आप बुक्स को काउंट कर सकते हैं। और जब मच की बात करें, देयर इज़ मच मिल्क इन दिस जग, इस जग में बहुत सारा मिल्क है, मीन्स मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। वो जो आपकी क्वांटिटी बताता है मिल्क कि वो कितना उसकी क्वांटिटी को डिनोट करता है, और मैनी जो है वो नंबर को डिनोट करता है, जिन्हें आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, बट मच जो है वो क्वांटिटी को बताता है। इसी तरह से फ्यू, अब जब हम बात फ्यू, लेस एंड सेवरल की आती है, सेवरल, तो यहाँ पर फ्यू जो है इट इज़ द अपोजिट ऑफ मैनी एंड लेस इज द अपोजिट ऑफ मच। फ्यू जो है वो किसके सेंस में अपोजिट है, फ्यू मीन्स कुछ, अपोजिट ऑफ मैनी, एंड लेस जो है वो अपोजिट ऑफ मच। और सेवरल जो है उसका मतलब मैनी से ही होता है, सेवरल मीन्स कई, मैनी मीन्स भी कई होता है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, और बाकी इनको अभी हम डिटेल से आगे एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। गाइस ध्यान से सुनेंगे सभी, तभी आपको क्लियर होगा। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। देखो हम यहाँ पे मैनी यूज़ किया हमने फ्लावर्स के लिए, एज आई हैव टोल्ड यू दैट मैनी डिनोट्स नंबर। अब ये जो फ्लावर्स हैं, मैनी फ्लावर्स को आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, 5 फ्लावर्स, 10 फ्लावर्स, 50 फ्लावर्स, एनिमल कितने भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मैनी का यूज़ किया है। मैनी पीपल कम टू सी द मैच, बहुत सारे लोग जो हैं वो मैच को देखने के लिए आए हैं। तो मैं कितने लोग आए हैं आप उनको काउंट करके उनके नंबर्स में आप बता सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू दैट मैनी डिनोट्स नंबर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मच, जब हम मच के बारे में बात करेंगे तो मच जो है वो क्वांटिटी को बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आई हैड टू पुट इन मच हार्ड वर्क,
आई हैड टू पुट इन मच हार्डवर्क, मतलब उसने हार्डवर्क के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। तो हार्डवर्क को आप कितना किया, दो नंबर्स में आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब कितना किया, ज़्यादा किया, कम किया, उसकी क्वांटिटी को शो करेगा। तो इस तरह से हम मच का यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटी को शो करने के लिए। देयर इज़ मच शुगर इन स्टॉक, स्टॉक में बहुत सारी शुगर है। तो आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते, आप उसको यूनिट्स में काउंट करेंगे, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, लेकिन आप उसके जो पार्टिकल्स हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आता है। तो आप उसकी क्वांटिटी बताएंगे, मात्रा बताएंगे, लेकिन आप उसे नंबर्स में नहीं बता सकते। इन दिस केसेस वी यूज़ मैनी वेयर इट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। जहाँ पर नंबर्स को डिनोट करने की बात आती है वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर क्वांटिटी डिनोट करने की बात आती है तो वहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे। फ्यू, लेस एंड सेवरल। अब देखो फ्यू का आपको बताया था कि वो उसका मैनी का जो है वो जो है क्या है, अपोजिट होता है। वी हैव फ्यू हॉलीडेज इन स्कूल, हमारे स्कूल में कुछ हॉलीडेज होती हैं, हमें स्कूल में कुछ हॉलीडेज होती हैं, कुछ हॉलीडे होती हैं। तो यहाँ पर एनी जो है वो उसको अपोजिट है। अ फ्यू स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द लेक्चर, फ्यू स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर अटेंड करने के लिए आए। यू डिवोट लेस टाइम, बहुत कम समय दिया। यहाँ पर मच मीन्स ज़्यादा दिया, लेस मीन्स कम दिया। टू योर स्टडीज़, तुमने अपनी स्टडी को बहुत कम टाइम दिया। जैसे कि आपको बताया मच और लेस जो है वो अपोजिट है, मच मीन्स ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है और लेस कम के लिए। सेवरल पीपल पेड होमेज टू द डिपार्टेड लीडर, सेवरल मीन्स कई लोगों ने, तो सेवरल जो है वो मैनी के सेंस में आता है, कई लोगों ने, मैनी पीपल के साथ आप सेवरल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काउंटेबल सेंस में आप अपने नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। ओके गाइज, ही केम टू मी आफ्टर सेवरल डेज, वो मेरे पास कई दिनों के बाद आया, और डेज को भी आप काउंट कर सकते हैं, तो वो मैनी वाले सेंस में ही आता है। अब यहाँ पर एक और भी कुछ है, जैसे माइनर से डिफरेंसेस हैं गाइस, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट यू हैव टू नो अबाउट दैट मैनी जो फ्यू होता है, फ्यू को हम फ्यू आ फ्यू द फ्यू, फ्यू आ फ्यू द फ्यू, लिटिल आ लिटिल एंड द लिटिल, लिटिल आ लिटिल एंड द लिटिल। देखो जैसे कि आपको बताया कि जो फ्यू है, फ्यू वहाँ पे काउंटेबल के लिए आता है, फ्यू को आप जो है उसमें नंबर्स में आप नंबर को डिनोट करता है, और जो लिटिल होता है वो क्वांटिटी को बताता है। लिटिल जो है वो क्वांटिटी को बताता है, लिटिल मीन्स थोड़ा, फ्यू मीन्स कुछ, ये अनकाउंटेबल क्वांटिटी को शो करता है। और जो फ्यू है वो हमारा जो है वो नंबर्स को डिनोट करता है। ये जो फ्यू है, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, देयर इज अ माइनर डिफरेंस, इन सब के बीच में माइनर डिफरेंस है, जिनसे आपको एक क्लियर होगा। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। देखो जैसे कि आपको बताया जा चुका है, अब यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं हम। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हमारा ये चल रहा है इसलिए हम ये क्लियर कर रहे हैं आपको। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, जस्ट लाइक अगर आप कहें आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, कि आपके पास फ्यू मतलब कुछ ही दोस्त हैं, आपके ज़्यादा नहीं है। और जब हम आ फ्यू की बात करेंगे, आ फ्यू मीन्स सम, यानी कि कुछ हैं। फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, मुश्किल से ही कोई है। और जब हम आ फ्यू मीन्स कुछ की, मतलब कुछ है, एटलीस्ट कुछ तो है। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, जब हम सब में से कुछ की बात करते हैं तब हम यहाँ पर द फ्यू का यूज़ करेंगे। आउट ऑफ होल, समथिंग आउट ऑफ होल, कुछ मतलब है सारे में से कुछ। जब हम बहुत सारे में से पूरे हॉल एंटायर में से कुछ की बात करेंगे तब हम फ्यू का यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे, आप एग्जांपल से उसको क्लियर करते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे कुछ ही दोस्त हैं, मीन्स इक्वल टू नथिंग, हार्डली एनी, 1 और 2। आई शैल रिटर्न दिस बुक इन फ्यू डेज, मैं कुछ ही दिनों में, मीन्स कुछ दिनों में, 4 डेज में, 5 डेज में बुक को रिटर्न कर दूंगा। जैसे कि आपको बताया कि फ्यू का यूज़ जो है नॉट मैनी, मतलब ज़्यादा नहीं है, हार्डली यानी मुश्किल से ही 1 या 2। और जब आ फ्यू की बात करें मीन्स कुछ है, समथिंग, आ फ्यू मीन्स समथिंग। और ये जो फ्यू है इक्वल टू नथिंग, नथिंग मतलब ना के बराबर ही होता है। और इस जो द फ्यू मीन्स आपके पास जितना भी है, जब आप उसमें से थोड़ा सा शो कर रहे हैं। जस्ट लाइक फॉर द एग्जाम्पल, आई हैव रीड द बुक, द फ्यूक्स आई हैड, मीन्स आपके पास जितनी भी बुक हैं उनमें से आपने कुछ को रीड किया। आउट ऑफ ऑल, सम आउट ऑफ ऑल, फ्यू आउट ऑफ ऑल, जितनी भी आपके पास बुक है उनमें से आपने कुछ को रीड किया। और यहाँ पर फ्यू को जैसे मैंने बताया कि ये नंबर्स को डिनोट करता है, तो यहाँ पर हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं कि आपके पास जितनी बुक हैं उनमें से कुछ को, शो नंबर शो कर रहा है। तो द फ्यू, वी यूज द फ्यू, समथिंग आउट ऑफ ऑल, जब सारे में से हम थोड़े की बात करें, यानी कि आपके पास जितनी बुक्स थी उनमें से कुछ को आपने रीड कर लिया।
तो इन दिस केसेस वी यूज फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू. फ्यू मीन्स इक्वल टू नथिंग, हार्डली एनी, इक्वल टू नथिंग, ना के बराबर. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. एंड आ फ्यू मीन्स समथिंग. आ फ्यू मीन्स सम, जब कुछ होता है, सब कुछ, तो उसके बारे में बात करते हैं. द फ्यू मीन्स समथिंग आउट ऑफ ऑल. जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, I have corrected the few mistakes you had done. तुमने जो मिस्टेक्स की थी उनमें से कुछ को मैंने करेक्ट कर लिया. या I have corrected the few mistakes I had done, कि जो मैंने मिस्टेक्स की थी उनमें से मैंने कुछ को, यानी कि जितनी की थी उनमें से कुछ का करेक्शन हो चुका है. मीन्स समथिंग आउट ऑफ ऑल. एंड सेम इन द केस ऑफ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल. बट इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब नंबर्स को डिनोट करने की बात होती है, नंबर को शो कर रहा होता है, तब हमने फ्यू का यूज़ करना है. और जब क्वांटिटी की बात होती है तब हमने लिटिल का यूज़ करना है. लिटिल मीन्स थोड़ा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी को बता रहा है. जस्ट लाइक लिटिल मीन्स नॉट मच. जैसे कि मैंने आपको फ्यू का बताया था, सेम है मच और मैनी. मच और मैनी का मैंने बताया था कि मैनी नंबर को डिनोट करता है और मच क्वांटिटी को डिनोट करता है. उसी में ही लिटिल मीन्स थोड़ा. लिटिल मीन्स नॉट मच, मीन्स हार्डली एनी, बहुत मुश्किल से ही कम, थोड़ा सा, इक्वल टू नथिंग. आ लिटिल मीन्स सम, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी बताया. बस डिफरेंस क्या है, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है और ये नंबर्स को शो कर रहा है. द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, मतलब जितना है उसमें से थोड़ा. फॉर एग्जाम्पल्स आप समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग. हार्डली यानी मतलब मुश्किल से ही 1 और 2 ड्रॉप वहाँ पर थोड़ा सा ही होगा. अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. थोड़ी बहुत नॉलेज जो रखते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होती पर कुछ तो होती है, इज़ अ डेंजरस थिंग. वो एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते. तो यहाँ पर अ लिटिल, आप नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल है और ये क्वांटिटी को शो कर रहा है. आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड. आई स्पेंड द लिटिल मनी, मैंने खर्च कर दिया. द लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा. आई हैड, जितना मेरे पास था. मीन्स मैंने सारा नहीं खर्च किया, मैंने थोड़ा सा खर्च किया जितना कि मेरे पास था. आई स्पेंड द लिटिल मनी, मैंने थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया है. आई हैड, जितना मेरे पास था. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, मैंने थोड़ी सी बुक्स पढ़ ली हैं. बुक्स को आप काउंट कर सकते हैं, मनी को आप काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है. तो इन दिस केस वी यूज फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल. देखो यहाँ पर आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा. और यहाँ पर एक लास्ट में आपको एक चीज़ और बतानी है. मैनी और मच के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैनी नंबर्स को डिनोट करता है, मच क्वांटिटी को डिनोट करता है. मैनी आ, कुछ केसेस में मैनी आ डिटर्मिनर का भी यूज़ किया जाता है. बस आपने ध्यान रखना है कि मैनी जो है वो तो प्लूरल नंबर्स को शो कर रहा है